स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल्स। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? द एडजेक्टिव्स a or an and the are generally called articles. They are demonstrative adjectives. The adjectives a or an and the are generally called articles. They are demonstrative adjectives or simply we can define like this: an article is a word which is used before a noun and tells us about the certainty of that noun. An article is a word which is used before a noun. It's used before a noun and tells us about the certainty of that noun. Certainty here means about the sureness of that noun. So articles are of two types: indefinite articles and B is definite article. What are indefinite articles? A and an are called indefinite articles because they do not refer to any particular or definite person, place, or thing. They do not refer to any particular or definite person, place, or thing. These two articles are the same for all genders. These two articles are the same for all genders. The choice between a and an wholly depends on the sound of the word before which it is to be used. The choice between a and an wholly depends on the sound of the word before which it is to be used. A or an is used before a singular countable noun. Remember it. A or an is used before a singular countable noun. So now let's define this definite article. The is called the definite article. It refers to some. It refers to some definite or particular place, person, or thing. The is called the definite article. It refers to some definite or particular person, place, or thing. The is same for singular and plural, and for all genders. It is same for all genders. It is used with both countable and uncountable nouns. Now, part one, that is indefinite articles. Use of a. Use of a. The following are the rules governing the use of indefinite article. It is used. The following are used governing the use of indefinite article. अब आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए जो है किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसके रूल्स क्या है. द फॉलोइंग आर द रूल्स गवर्निंग द यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल. इट इज़ यूज्ड यानी ए इज़ यूज्ड before a word beginning with a consonant having a consonant sound. A is used before a word. It is used before a word beginning with a consonant having a consonant sound. वो word जो consonant से start begin होता है और जिसकी sound भी निकलता है consonant. So it is used before a word beginning with a consonant having a consonant sound. For example, a boy, a girl, a man, a tree, a bat, a pen, a house, a ball, a chair, etc. etc. So a is used before a word beginning with a consonant having a consonant sound. Beginning with a consonant having a consonant sound. Now इसका rule जो second है that is before a word beginning with u or eu giving the consonant sound u. यानी वो वर्ड जो u और eu से begin होता है लेकिन उसकी जो sound निकलता है that is consonant sound of u. For example, a university, a universe. यहाँ पे u it is this vowel लेकिन इसकी जो आवाज़ निकलती है, इसकी जो sound निकलता है that is u. A university, it is consonant. A union, a unit, a utensil, a useful book, a uniform, a European. So वो वर्ड जो u से और eu से begin होता है लेकिन उसकी जो sound निकलते हैं that is a consonant sound of u. So before a word beginning with u or eu giving the consonant sound of u. For example, a university, a union, a unit, a utensil, a useful book, a uniform, a European, etc. So दो rules हो गए इसके. अब इसका जो तीसरा rule है that is before a word that begins with a vowel, especially o, that begins with a vowel, especially o with the sound of w. For example, a 1 rupee note.
a one man tribunal, a one eyed boy, a one eyed giant. सो वो वर्ड जो बिगिन होता है वॉवल से, अब हमें पता है ये वॉवल कितने हैं। वॉवल हमारे पास 5 है, ए ई आई यू, और जो बाकी हैं 21 जो कंसोनेंट्स हैं। सो सो वो वर्ड जो बिगिन होता है वॉवल से, मगर स्पेशली विद वॉवल ओ, बट विद द साउंड ऑफ डब्ल्यू, जहाँ पे आवाज़ निकलती है डब्ल्यू की, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए 1 रुपी नोट, वन, वहाँ पे जो यहाँ पे जो साउंड है दैट इज़ डब्ल्यू की साउंड है। ए वन मैन ट्रिब्यूनल, ए वन आइड बॉय, ए वन आइड जेंट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो यूज़ ऑफ एन जो है, the rules relating to the use of an are given below. The rules relating to the use of an are given below. जो an के जो rules हैं वो नीचे हैं. It is used before a word that begins with a vowel having a vowel sound. वो word जो begin होता है vowel से और उसकी जो sound निकलता है that is a vowel sound. गो इसके लिए जो टू इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे, एक तो वो वर्ड इस्तेमाल स्टार्ट होता है कहाँ से, किसे, वावल से, और उसके जो साउंड भी निकलता है दैट इज़ अ वावल साउंड, दैट बिगिनस विद अ वावल हैविंग अ वावल साउंड. फॉर एग्जांपल एप्पल, एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन अकल, एन ऑफिसर, एन इक्वॉट. सो यहाँ पे जो वर्ड है वो बिगिन भी होता है कहाँ से, कैसे, वो बिगिन होता है वावल से, और उसकी साउंड जो निकलता है दैट इज़ अ वावल साउंड. सो इसका फर्स्ट रूल है बिफोर ए वर्ड दैट बिगिनस विद ए वावल हैविंग ए वावल साउंड, और इसके एग्जांपल्स हैं एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट. और नेक्स्ट है बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच. वो वर्ड जो एच से स्टार्ट होता है लेकिन एच साइलेंट रहता है यहाँ पे. सो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, वहाँ पे एन आर्टिकल इस्तेमाल होता है बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच. फॉर एग्जांपल एन ऑनरेबल पर्सन, यहाँ पे एच है पहले, एच यहाँ पे ये ओमिट हो जाता है और यहाँ पे एच साइलेंट रहता है. सो दिस इज़ एच साइलेंट यहाँ पे रहता है. एन ऑनरेबल पर्सन, एन आवर, यहाँ पे एच जो है यहाँ पे एच जो है ओमिट नहीं, यहाँ पे साइलेंट रहता है. एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है. सो इट इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेरियम. सो यहाँ पे एच साइलेंट है, सो इट इज़ एन ऑनरेरियम. सो बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद साइलेंट एच, वो वर्ड जहाँ पे एच जो एच से स्टार्ट होता है लेकिन एच साइलेंट रहता है, सो वहाँ पे हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. सो एन ऑनरेबल पर्सन, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेरियम. सो बाकी एग्जांपल्स आपके पास हैं, उनकी ड्रिल कीजिएगा. सो अब हमारे पास तीसरा जो रूल एन का है, वो फर्स्ट रूल एन का है बिफोर ए वर्ड दैट बिगिनस विद ए वावल हैविंग ए वावल साउंड. और इसका जो सेकंड रूल है बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच. और तीसरा जो रूल है इसका बिफोर एन एब्रिवेशन द फर्स्ट लेटर ऑफ विच बिगिनस विद ए कॉन्सोनेंट. वो एब्रिवेशन उसके सामने एन लगता है जो स्टार्ट होता है द बिगिनिंग लेटर ऑफ विच बिगिनस विद ए कॉन्स्टेंट विद ए कॉन्सोनेंट. the first letter of which begins with a consonant. यानी जिसका जो फर्स्ट लेटर है कैसे स्टार्ट होता है, कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, हैविंग ए वॉवल साउंड, जिसकी साउंड जो है दैट इज़ ए वॉवल साउंड. और इसका तीसरा रूल है दैट इज़ बिफोर एन एब्रिविएशन द फर्स्ट लेटर ऑफ विच बिगिनस विद ए कॉन्सोनेंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ विच बिगिनस विद ए कॉन्सोनेंट हैविंग ए वॉवल साउंड. जिसकी जो फर्स्ट लेटर है वो एब्रिविएशन जिसका जो फर्स्ट लेटर जो है दैट बिगिनस विद ए कॉन्सोनेंट बट हैविंग ए वॉवल साउंड. सो यहाँ पे तीसरा रूल जो है बिफोर एन एब्रिविएशन द फर्स्ट लेटर ऑफ विच बिगिनस विद ए कॉन्सोनेंट हैविंग ए वॉवल साउंड. फॉर एग्जांपल एन एम बी ए, यहाँ पे जो साउंड निकलते हैं वो वॉवल की निकलती है. एन एम हाँ, एन एम एल एन एम पी, एन एम बी ए, NMLA, NMP, NSDO. So these are three rules for use of N. And now omission of A or N क्या है? The indefinite articles A or N is omitted according to the following rules. यहाँ पे omit किया जाता है.
ए और एन इज़ नॉट यूज, यानी यहाँ पे ए और एन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जहाँ पे अनकाउंटेबल, जहाँ पे नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल ओमिट किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, जो हम मील्स लेते हैं तो उनके सामने जो एन और ए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एट डिनर एट 9:30 PM, ही गेव अस ब्रेकफास्ट एट नाइट। अगर हम ये लिखें ही गेव अस ए ब्रेकफास्ट, ये गलत है, यहाँ पे ए और एन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे नोट नीचे लिखा दिया गया है, लिखा है मैंने, ज़रा आप इस नोट को अंडरस्टैंड कीजिए। ए और एन कैन बी यूज बिफोर द नेम ऑफ ए मील प्रोसीडेड बाय एन एडजेक्टिव। अगर मील कोई इट इज़ प्रोसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से प्रोसीड किया गया है, तो वहाँ पे हम एज पर रूल ए और एन इस्तेमाल कर सकते हैं। ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, ही गेव अस, अगर हम लिखें इसी तरह हम सीधा लिखें ही गेव अस ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे ए और एन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर इसने लिखा, अगर यहाँ पे हमने गुड इस्तेमाल किया तो इसके सामने ए आएगा। सो ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। सो एक एग्जांपल है। सो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द अब इसका दूसरा जो पार्ट है नोट का, द आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर ए स्पेशल मील given to celebrate something or in someone's honor. For example, I was invited to a dinner, हमने यहाँ पे a इस्तेमाल किया, to a dinner to welcome the prime minister, टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है समथिंग और इन समवन्स ऑनर, हमने यहाँ पे ए इस्तेमाल किया। सो द आर्टिकल, इसका रूल सेकंड नोट 2 में जो सेकंड रूल है इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। द आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर ए स्पेशल मील, इट कैन बी यूज बिफोर ए स्पेशल मील given to celebrate something or in someone's honor। यहाँ पे I was invited to a dinner to welcome the प्राइम मिनिस्टर, टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर के लिए पार्टी रखी गई, तो इसके लिए टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर, डिनर पे मुझे इन्वाइट किया गया टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। सो द आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर ए स्पेशल मील, बिफोर ए स्पेशल मील, जहाँ पे स्पेशल मील रखा गया और उसके सामने हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बिफोर ए I was invited to a dinner to welcome the prime minister। सो ये नोट फर्स्ट और सेकंड आप इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा। और नंबर थर्ड है बिफोर ए नाउन प्रोसीडेड बाय काइंड ऑफ, यानी वो नाउन जो किससे प्रोसीड किया है, जिसके सामने काइंड ऑफ लिखा गया हो, जो विच इज़ प्रोसीडेड बाय काइंड ऑफ। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। अगर हम यहाँ पे जो फ्लावर है इट इज़ प्रेसिडेड बाय काइंड ऑफ, सो यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ इट, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही। इस तरह बाकी सारे एग्जांपल्स हैं। सो नाउ रिपीटिशन ऑफ ए और एन, या आर्टिकल्स ए और एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स एक दो मैंने लिखे, आप ये यहाँ पे आपके सामने हैं, ज़रा आप स्क्रीन पे आप ज़रा देखिए। आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट गोट्स, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट गोट्स, यहाँ पे ए इस्तेमाल किया, 2 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। दिस मीन्स दैट आई हैव 2 गोट्स, 1 ब्लैक एंड अदर वाइट। यहाँ पे 2 गोट्स हैं, एक तो वाइट है और एक ब्लैक है। नाउ और एक सेंटेंस ज़रा देखिए आप। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट गोट, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट गोट। यहाँ पे एक ही जगह ए इस्तेमाल किया है। दिस सेंटेंस मीन्स दैट आई हैव ए गोट दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट, एक ही गोट है लेकिन दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट। सो यहाँ पे रूल क्या है, हेंस व्हेन 2 or more adjectives qualify the same noun, when 2 or more adjectives qualify the same noun, the article is used before the first adjective। जहाँ पे हमने जिस तरह हमने दूसरे सेंटेंस में पहले पे आई हैव ए गो, यहाँ पे आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट गोट। सो हमने यहाँ पे पहले एडजेक्टिव जो है उसके सामने उसके सामने लिखा है। सो बट व्हेन दे क्वालिफाई, यहाँ पे hence 2 or more adjectives qualify the same noun, the article is used before the first adjective only। But when they qualify different nouns, expressed or understood, the article is used before each adjective। जब वो when they qualify different, जब वो क्वालिफाई करते हैं डिफरेंट नाउन्स, वहाँ पे हमने अलग अलग ये आर्टिकल लिखना है। लेकिन when they qualify the same noun, वहाँ पे हम फर्स्ट एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल लगाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट
today's topic. Thank you.